جناب میاں افتخار صاحب، جناب سردار یعقوب خان ناصر صاحب، جناب مولانا عبدالوسیع صاحب، جناب علی مدد چتک صاحب، بلوچستان بار ایسوسی ایشن جناب جلیل مردان زرعی صاحب، جناب عصمت اللہ صالح صاحب، جناب جمال شاہ کاکر صاحب اور تمام اپوزیشن پارٹیز کے بہت محترم بھائیوں بہنوں بزرگوں بلوچستان کے غیور بھائیوں بہنوں بزرگوں بیٹوں اور پاکستان مسلم لیگ نون کے شیروں، آپ کو آپ کی بیٹی آپ کی بہن مریم نواز کا سلام، اور آپ کو لاہور میں بے گناہ قید جیل سے، کوٹ لکھپت جیل سے آپ کے منتخب وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کا سلام۔ میرے بلوچستان کے بھائیوں بہنوں، آپ اردو سمجھتے ہو نا؟ کتنے لوگ اردو سمجھتے ہو؟ اچھے سے سمجھتے ہو؟ جو نہیں سمجھتے یا کم سمجھتے تو وہ جو زیادہ سمجھتے وہ میرے بھائیوں کو سمجھا دیں، لیکن میری باتوں کو غور سے سننا اور ان کا جواب بھی دینا، دو گے نا؟ اس کو بند ادھر آؤ جلدی سے۔ میرے بھائیوں بلوچستان کے بھائیوں بہنوں، بند نواز شریف بلوچستان سے پیار کرتا تھا، 400 ہو گیا۔ نواز شریف بلوچستان سے محبت کرتا ہے، اور آج اس لیے جب محمود خان اچکزئی صاحب نے مجھے دعوت دی تو میں لاہور میں یوم سیاہ کی ریلی چھوڑ کے بھاگ کر کوئٹہ آ گیا، اور یہ جو نواز شریف کی آپ سے محبت ہے، بلوچستان سے محبت ہے، جو کہ اس نے مریم نواز کے دل و دماغ میں بھی ڈالی ہے، اس کی گواہی یہاں بیٹھے قائدین نہیں دیں گے، بلکہ چاوی کے پہاڑ کی نواز شریف کی بلوچستان سے محبت کی گواہی ہے۔ یاد ہے نا چاوی میں جب نعرہ تکبیر کا نعرہ گونجا تھا تو بلوچستان میں آپ کو سلام پیش کرتی ہوں کہ جب پاکستان کو ایٹمی طاقت بننا تھا تو بلوچستان نے اپنا سینہ پاکستان کو پیش کیا۔ جیسے ہم لوگ ایسے نہیں کرتے، بند ہو۔ اور 2017 کی 2 دسمبر کو جس کا نہیں نواز شریف صاحب جب خان شہید عبدالصمد خان اچکزئی صاحب کی برسی کے موقع پر کوئٹہ میں تشریف لائے تھے تو انہوں نے آپ سے وعدہ کیا تھا، آپ گاؤں میں اچکزئی صاحب انہوں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ آئین کے پاکستان کے آئین کی پاسداری کے مطالبے سے پیچھے نہیں ہٹوں گا، وعدہ کیا تھا نا؟ اور آج بلوچستان کے میرے بھائیوں وہ اس وعدے کی نبھانے کی پاداش میں آج وہ بے گناہ ہوتے ہوئے بھی جیل میں بیٹھا ہے، اور نہ صرف وہ جیل میں بیٹھا ہے بلکہ اس کا اس وعدے کے ساتھ نبھانے پر پاکستان کی بیٹی، آپ کی بیٹی، آپ کی بہن کو بھی جیل میں پھینک دیا گیا۔ لیکن آج ہم جمع ہوئے یہاں پر یوم سیاہ منانے پر، جانتے ہو نا کہ آج ہم
यौम सियासी मना रहे हैं, जानते हो ना? नहीं, इसका अपना इस दिन 1 साल पहले आपके वोट को पांव के नीचे रौंदा गया। आप इंडिपेंडेंट क्या? आपके वोट को पांव के नीचे मसला गया और बलोचिस्तान में बाप जैसी पार्टी को मैं भागूंगा। आपका इक़्तिदार, आपका हक छीन कर आ गया 500 वोट रखने वाला, 500 वोट लेने वाला आपके सर पे मुसल्लत कर दिया गया है ना शर्म की बात? आपने उस चीज पे क्लिक और मेरे भाइयों, पिछले 2-3 साल से किस वाले यकीन जानो, हर मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी बलूचिस्तान के अवाम की तरह ये गवाही देगा कि पिछले 1-2 साल से पाकिस्तान का हर दिन यौम सया है। तो वो है यार, ग्रुप है। जब इलेक्शन से पहले, इलेक्शन वाले दिन सिर्फ यौम सया नहीं था, इलेक्शन से पहले जब आपके लिए बाप पार्टी बनी, कहाँ से आ गई 10 दिन के अंदर अंदर ये पार्टी? जिस तरह ये पार्टी बनी, 2.4 जिस तरह अवाम के हकीकी नुमाइंदों को, फोन करवा लो। जिनको डर था कि ये जीत जाएंगे, उनको चुन चुन कर मैदान से बाहर किया गया। उनको कहा गया कि अपनी पार्टी, अपनी वफादारियां तब्दील कर लो। और जिसने ये तो ग्रुप खुददारी का मुजाहरा किया, जिसने गैरत का मुजाहरा किया और अपनी पार्टी नहीं छोड़ी, उसके ऊपर झूठे मुकदमात बना दिए गए, उसके ऊपर न्याय के केसेस बना दिए गए। किसी को आज मंशियात के इल्जाम में अंदर कर दिया जाता है, किसी को आज 1970 के जमाने के मुकदमात में अंदर कर दिया जाता है। ये तो नहीं। और आज जब पाकिस्तान के अवाम, ये जो आपकी, हम यहाँ पर यौम सया मना रहे हैं ना, इलेक्शन में जो आपके वोट पर डाका डाला गया था, जो आपके हक पर डाका डाला गया था, जल्दी से जिसके नतीजे में आज अजाब की सूरत में ये नालायक आजम, सिलेक्टिव आजम आज हमारे सरों पर मुसल्लत है, इसकी हुक्मरानी में हर दिन आज यौम सया है। जब महंगाई से गरीब का बच्चा रोता है, जब महंगाई से गरीब के घर में रोटी नहीं होती, जब महंगाई से कारखाने बंद होते हैं, जब महंगाई से लोगों की रोजगार चले जाते हैं, नौकरियां चली जाती हैं, जब इस नालायकी और नाअहली का असर लोगों के घरों पे, लोगों के कारोबार पे पड़ता है, लोगों के तरक्की पे पड़ता है, तो मुझे हाथ उठा के बताओ, क्या पाकिस्तान का हर दिन यौम सया नहीं होता? जब IMF के पास पाकिस्तान को गिरवी रख दिया जाता है, जब पाकिस्तान की तारीख के सबसे ज्यादा कर्जे 16,000 अरब कर्जा एक साल में लिया जाता है, तो क्या हर दिन यौम सया नहीं होता? ये सेलेक्टेड आजम, नालायक आजम, नाअहले आजम अमेरिका में ट्रंप के पास जाके बैठता है तो इसके मुंह से आवाज नहीं निकलती। ये ट्रंप इसके सामने कह रहा है, क्या कहा ट्रंप ने, सुना ना? वो इसको सामने बिठा के इसकी मौजूदगी में ये कह रहा था कि जो पिछली हुकूमतें हैं उन्होंने मेरी बात, उन्होंने अमेरिका की डिक्टेशन नहीं ली, वो अच्छी हुकूमतें नहीं थी। यानी कि समझते हो ना इस बात का मतलब? इस बात का मतलब ये है बलूचिस्तान के भाइयों, इस बात का मतलब ये है कि पिछली हुकूमतों ने अपने अवाम का, अपने मुल्क का अमेरिका के हाथों सौदा नहीं किया। और अब उसने कहा कि ऐसी हुकूमत आ गई है कि जो इमदाद हमें बंद करनी पड़ी थी, वो इमदाद अब हम खोल देंगे। उसको पता था कि ये हर जगह जाके मांगता है, ये मांग
बलोचिस्तान के गयूर भाइयों, आप गैरत वाले लोग हो। इसमें इतनी भी गैरत नहीं कि ये अकेला पाकिस्तान की अमेरिका में नुमाइंदगी कर सके। इदारों के लोगों को साथ लेकर गया, क्योंकि अकेले इसकी बात कोई सुनने को तैयार ही नहीं है। है ना शर्म की बात? तो क्या जब ये ट्रंप के सामने भीगी दिल्ली बन के बैठा था, तो क्या वो दिन पाकिस्तान के लिए यौम ख्याल नहीं था? जी सर। नहीं था। और मेरे भाइयों, उनका भी रहने दो। पाकिस्तान के सूबों में दुनिया पैदा करने वाले एक मिनट पाकिस्तान के सूबों में दुनिया पैदा करने वाले एक खोल लो इसको। ये सूबे नहीं है, ये पंजाब, बलोचिस्तान, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, ये एक दूसरे के भाई हैं। इनको दूर करने वाली है वो सोच इनको दूर करने वाली है जिसने आपके वोट के हक पर डाका डाला है, जिसने आपके वोट को छीना है, जिसने यहां बाप जैसी पार्टियों की हुकूमत बनाई है। देखो, आज मुझे जरा हाथ उठा के बताओ, महंगाई हो गई है ना? रोटी महंगी हुई है ना? एक भाई मुझे बताए कि नवाज शरीफ के जमाने में रोटी कितने की थी? कितने की थी रोटी? तो नवाज शरीफ के जमाने में 5 रुपए की थी, और आज कितने की रोटी है? 20 रुपए की, 25 रुपए की रोटी है। और जिस मुल्क में लोगों के पास रोटी पूरी ना हो रही हो, जिस मुल्क में सड़कें बंद हो रही हो, जिस मुल्क में कारोबार बंद हो रहे हो, जिसमें लोग अपने कारोबार लपेट के दूसरे मुल्कों में जा रहे हो, उस मुल्क का नालायक आज़म बजाय इसके कि अवाम के मसाइल पे तवज्जो दे, उसके सर पे सिर्फ नवाज शरीफ और ऑपोजिशन का भूत था। मेरे बलोचिस्तान के भाइयों, आज सिर्फ रोटी महंगी नहीं हुई, आज सिर्फ खाने पीने की चीजें महंगी नहीं हुई, आज दवाइयां भी बहुत महंगी हो गई हैं। और मुझे अंदाजा है कि गरीब आदमी अपनी रोटी पूरी करे, अपने बच्चों की तालीम का खर्चा उठाए, या घर में बीमारी से जो सामने मौत नजर आ रही है, दवाइयां महंगी हुई है या नहीं हुई? मुझे पता चला है कि इंसुलिन, और मुझे पता चला है कि हर दवाई जो है उसकी कीमत तकरीबन डबल हो गई है। तो क्या ये हर दिन यौम सयान नहीं है पाकिस्तान में? और इसकी सारी तवज्जो इस तरफ है, घटिया आदमी है ना, ये आपका जो नालायक आदमी है वो घटिया आदमी है, छोटा आदमी है, छोटी सोच है, दिल का छोटा है, दिमाग तो खैर है ही नहीं, बैसाखियों पे खड़ा है। उसकी सोच क्या है? उसकी सोच है कि 70 साल का बीमार जो आपका 3 दफा का वजीर आजम है, उसका खाना बंद कर दो, उसके कमरे से एसी उतार दो, और मीडिया की जबान बंद कर दो। मरियम नवाज शरीफ का
जानते हैं कि जहां भी मेरा जलसा होता है वहां 6-7 हजार गिरफ्तारियां होती हैं, पर्चे कटते हैं, मुस्लिम लीग नून के वर्करों को जेलों में डाला जाता है, सहाफियों की आवाजें बंद की जाती है, चैनल्स पर धमकियां दी जाती है। और आप जानते हैं कि आज का बलोचिस्तान का ये जलसा कहीं मीडिया पे नहीं है, कहीं नहीं है मीडिया पे। जिस तरह मुशर्रफ जैसे डिक्टेटरों ने बलोचिस्तान पे जुल्म किया, जगह जगह आग लगाई, आपके वोट से आए हुए नवाज शरीफ ने न सिर्फ वो आग बुझाने की कोशिश की, बल्कि वोट को इज्जत दो का नारा उसने आज नहीं लगाया, उसने ये नारा बाद में लगाया था, वोट को इज्जत उसने पहले लगाई थी। आपको याद है ना, बलोचिस्तान में 2013 के बाद नवाज शरीफ चाहता तो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बन सकती थी ना, लेकिन उसने बलोचिस्तान के आवाम के वोट को इज्जत दी, डॉक्टर मोहम्मद मालिक साहब को वज़ीर आला बनाया बलोचिस्तान। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा में मेजॉरिटी पीटीआई की थी, तहरीक इंसाफ की थी, लेकिन वहां जोड़ तोड़ करके मुस्लिम लीग नून 2013 में हुकूमत बना सकती थी, लेकिन नवाज शरीफ ने पीटीआई के वोट को भी इज्जत दी और पीटीआई को वहां पूरी सहूलत फराहम की कि वो अपनी हुकूमत बना सकता है। और आज जब चेयरमैन सेनेट को तब्दील करने की बारी आई है, तो किसका नाम आया है? आज भी बलोचिस्तान में माशाल्लाह मुस्लिम लीग नून की अक्सरियत है, लेकिन नवाज शरीफ ने जेल से फैसला किया कि हासिल ब्रजेंजर साहब बलोचिस्तान से सेनेट के चेयरमैन के उम्मीदवार होंगे। ये है अवाम के मुंतखब नुमाइंदे जो दिलों को जोड़ते हैं, जो सूबों को जोड़ते हैं, जो बलोचिस्तान को पंजाब से, पंजाब को केपीके से, केपीके को सिंध से जोड़ते हैं। और अभी लगाएंगे और लगाएंगे, लेकिन देखो सिर्फ नवाज शरीफ ने दिलों को नहीं जोड़ा, सीपेक के जरिए चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के जरिए बलोचिस्तान को पूरे पाकिस्तान से जोड़ दिया। 45 अरब का जो मंसूबा था चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, उसमें नए मंसूबे डाले बलोचिस्तान के लिए और उसको $60 अरब की इन्वेस्टमेंट बना दिया। और गवादर पोर्ट का तो पता है ना, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, पता है ना गवादर पोर्ट का। बलोचिस्तान में जो गवादर पोर्ट है उसको दुनिया की कामयाब तरीन और इफेक्टिव तरीन पोर्ट बनाने की, बंदरगाह बनाने की पूरी प्लानिंग कर दी, लेकिन मेरे भाइयों यौम स्याह है कि तरक्की का पहिया रुक गया है, पाकिस्तान की तरक्की को ब्रेक लग गई है। और मेरे भाइयों और आखिर में अपने बलोचिस्तान के गयूर भाइयों बहनों बुजुर्गों के सामने नवाज शरीफ की बेगुनाही का मुकदमा रखने आई हूं। बलोचिस्तान के मेरे गयूर अवाम, आज मैं आपकी अदालत में नवाज शरीफ की बेगुनाही का मुकदमा रखने आई हूं। वो जज वाली वीडियो देखी थी ना, वो जज जिसने नवाज शरीफ को सजा दी, वो अपने मुंह से कह रहा है कि नवाज शरीफ के ऊपर एक पाई की करप्शन साबित नहीं हुई, नवाज शरीफ के ऊपर एसिड बियॉन्ड मीन्स का मुकदमा भी साबित नहीं हुआ, नवाज शरीफ के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का भी
लाल कोठरी में क्यों बंद है? मुझे जवाब दो इस बात का। मेरे भाइयों, आज मैं बलूचिस्तान से नवाज शरीफ की बेगुनाही पर मोहर लगाने आई हूं। आज मैं आपकी अदालत से नवाज शरीफ की बेगुनाही पर मोहर लगवाने आई हूं। आप मुझे हाथ उठा के बताओ, क्या आप बेगुनाह नवाज शरीफ की रिहाई चाहते हो? बेगुनाह नवाज शरीफ की और बेगुनाह नवाज शरीफ की रिहाई का मुतालबा करते हो ना? एक दफा फिर दोनों हाथ उठा के बेगुनाह नवाज शरीफ की रिहाई का मुतालबा करते हो ना? और आखिर में मुल्क के मुख्तलिफ इदारों से मैं एक दरख्वास्त करूंगी। मैं मुल्क के मुख्तलिफ इदारों से एक दरख्वास्त करूंगी कि आप अवाम के इदारे हैं, आप बलूचिस्तान के इदारे हैं, आप पंजाब के इदारे हैं, आप सिंध के इदारे हैं, आप खैबर पख्तूनख्वा के इदारे हैं, आप गिलगित बल्तिस्तान के इदारे हैं, आप इमरान खान के इदारे नहीं हैं। आप एक नालायक, नाअहल और उस शख्स के जिसका नाम इमरान खान है, जिसने पाकिस्तान को तारीखी नाकामी से दोचार किया, आप उसके नुमाइंदा नहीं हैं। आप हमारे नुमाइंदे हैं। आपसे बलोची भी, मेरे बलूचिस्तान के भाई बहन भी नाराज हैं। आपसे पंजाब के मेरे बहन भाई भी नाराज हैं। आपसे सिंधी भी नाराज हैं। आपसे खैबर पख्तूनख्वा के भाई बहन भी नाराज हैं। तो आगे बढ़ें और एक नाकाम और नामुराद इंसान का साथ छोड़कर अवाम का साथ दें। अवाम के बिल मुकाबले आके खड़े ना हो। ये अवाम आपकी इज्जत करना चाहती है। ये जो यहाँ बैठी है, जो जमातें यहाँ बैठी है, ये जो मरियम नवाज खिताब कर रही है, ये आपसे प्यार करती है, आपकी इज्जत करना चाहती है। रियासत माँ होती है मेरी भाइयों, रियासत माँ होती है और इदारे भी माँ और बाप का रोल प्ले करते हैं। तो मेरी अपने इदारों से गुजारिश है कि एक नालायक और नाअहल शख्स की नाकामियों का बोझ मत ढोएं। नाअहल और नाकाम इमरान खान के लिए अवाम से टक्कर मत लें। नालायक और नाअहल और नामुराद इमरान खान की खातिर अपने इदारों को अवाम के बिलमुकाबिल खड़ा मत करें और आगे बढ़ें। ये अवाम जो यहाँ बैठी है, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, सिंध, इनको आगे बढ़कर सीने से लगाएगा, आगे बढ़कर इनके मसाइल को हल करें, वोट को इज्जत दें और इनकी नुमाइंदा हुकूमतों को आने दें। इस मुल्क की तरक्की कभी मुमकिन नहीं हो सकती अगर इस मुल्क में नुमाइंदा हुकूमत नहीं आएगी। और आखिर में मेरे भाइयों, पाकिस्तान का सब हिलाली परचम, जिसको बलोचों ने कभी बलोचिस्तान के अवाम ने कभी गिरने नहीं दिया, थाम के रखा है। और वो परचम जो मेरे बलोचिस्तान के अवाम की गैरत है, उनका नाज है, उनका फख्र है। मेरे जैसी करोड़ों बहनों का, बेटियों का वो परचम, वो दुपट्टा है। आओ मिलकर वादा करते हैं कि उस परचम को कभी सरनिगुम नहीं होने देंगे। वादा करते हो ना? और आखिर में एक और वादा करो, अगर इस जाली हुकूमत को जो आपके वोट चोरी करके आई है, इसको आखिरी
अगर पंजाब से, खैबर पख्तूनख्वा से, सिंध से अगर मेरे भाई बहन इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे तो क्या बलोचिस्तान भी आएगा? इस्लामाबाद की तरफ मार्च करोगे ना? चलो मेरे साथ मिलकर मेरे बलोचिस्तान के बहन भाइयों ये नारा लगा दो, बलोचिस्तान जिंदाबाद, बलोचिस्तान, पाकिस्तान, पाकिस्तान। ये पाकिस्तान बल्कि दुनिया के हर कोने में आवाज जानी चाहिए एक दफा, पाकिस्तान।